آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، عورتوں کی حقوق نہیں ہے اس مذہب اسلام میں۔ جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے دا ویسٹرن ٹاک آف وومنز لبرلائزیشن، دا ویسٹرن ٹاک آف وومنز لبرلائزیشن از نتھنگ بٹ a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubine, mistress and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیر بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی، جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے۔ ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، BMW موٹر گاڑی کی، ایک گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے۔ عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار۔ تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی، اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی، کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو۔ یہ مغربی تہذیب ان کے ماں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے۔ ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں۔ وہ لبرلائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام۔ USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام۔ اور جو لوگ جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں، 2/3 آف دیم آر وومن۔ اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے ہیں؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ان لوگوں نے پلان کیا، سازش کی، اللہ نے بھی پلان کیا،
اور सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जितना वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम तेजी से फैल रहा है। और खुसूसन मीडिया 11 सितंबर 2001 के बाद जो तेजी से इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ही तेजी से इस्लाम फैल रहा है। 11 सितंबर 2001 के बाद 10 महीने में 34,000 अमेरिकनों ने इस्लाम कबूल किया। 11 सितंबर 2001 के बाद 9 महीने में 22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, जहमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से। सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 21, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कोई भी। कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। गलत है, तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्री या सिनेगॉग को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की जरूरत है या दिमाग की? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की जरूरत है क्या दिमाग की? दोनों की जरूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी इस्रौली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको खत्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज है, इसके अंदर सदर का लफ्ज होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, खतमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब से पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं
लूनेटिक. लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून. जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक. बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को. मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानिए तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून. हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है. हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर. डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक. लेकिन डिजास्टर की सही मानिए इविल स्टार, इविल सितारा. हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज. हम कहते हैं सनराइज. सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है. हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं. ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. हम जानते हैं सूरज वहां है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है. सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट. हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया. याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं. फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया. कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं. चाहत दिमाग में, दिल में नहीं. डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन. फिर भी डॉक्टर जो अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग से नहीं. साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में. तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है. आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से. अगर आप दिल कहते में अंदरूनी चाहत वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते. आप अंधविश्वास नहीं कर सकते. आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 जमा 2 3. हाँ, मैं दिल से मानता हूं, मान दिया. दिमाग कहता है नहीं, गलत है. तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए. इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए. तो दोनों साथ साथ होना चाहिए. इस्लाम इसीलिए मैंने कहा ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी. ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी. बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज फिजिकल नीड. होप द आंसर द क्वेश्चन. बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं. अस्सलाम वालेकुम. आई एम दिव्या शर्मा. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट. ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो. ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे. इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है. When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम. क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी. उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए. वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए. और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है
हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप द आंसर क्वेश्चन। सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। Hello, Assalamu alaikum, Dr. Zakir Saab. Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए उनसे। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian.